اچھا اب یہ ہے شکل اول کی 16 قسمیں، شکل اول کی 16 قسمیں. اب 16 کیسے بنے گی دیکھیں، یہ اس طرح، یہ کتنی ہو گئی 1 2 3 اور 4، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کرتے جائیں 5 6، ٹھیک ہے، اور 7 اور یہ 8 ہو گئی، یہ 9 اور یہ سال کا کلیا جائے گا 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اور یہ 10 یہ 11 اور یہ 12، یہ کتنی آ گئی 13. سال کا جزیہ برابر کا نشان لگا رہا ہوں 3 دفعہ جائے گا، 14 15 اور 16، یہ اب 16 بن گئی. 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 اور 16. اب کتاب میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے نا 16 قسمیں ہیں، لیکن ہر شکل کا نتیجہ نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے صغرا اور کبرا کے بعد کیا آتا ہے؟ نتیجہ آتا ہے نا. کہتے ہیں کہ ہر شکل کے بعد نتیجہ نہیں آئے گا، جو شکل نتیجہ دے گی اس کو بولیں گے ضروب منتجہ. ضروب نتیجہ دینے والی قسمیں، ضرب بنا قسم اور ضروب اس کی جمع، ٹھیک ہے نا. اور جو نتیجہ نہیں دے گی ان کا نام ہوگا ضروب حکیمہ. حکیمہ کے حکیم کس کو کہتے ہیں؟ 5، یعنی کہ اولاد نہ دینے والے، ٹھیک ہے نا. یعنی اب وہ نتیجہ نہیں دے رہے، سمجھ گئے نا. تو یعنی کہ وہ فارغ مرغی ہے، فارغ مرغی بچے نہیں نکالتی نا، صرف انڈے دیتی. بچوں کے لیے دیسی مرغی لا رہے، یہ جو ہمارے گولڈن ہوئی ہے یہ بچوں کے نہیں کاٹتی، بچے کیسے مشین میں لے جاتی ہے، وہ رکھتے ہیں اس کو. اچھا اب ان میں سے کون سی منتجہ ہے اور کون سی عقیمہ، یہ لکھ دوں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں ضروب، یہ پین بھی اب ایسا لگے جو لکھ نہیں رہے. ضروب منتجہ اور ضروب عقیمہ. دوسرا پین نہیں ہے نیچے، جلدی سے ہے یا آسان والی کلاس سے. یہ ان 16 اقسام میں سے 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ضروب منتجہ. اب وہ کون سی ہیں؟ یہ نمبر 1 نمبر 3 نمبر 5 اور نمبر 7. ان پر آپ دائرہ لگا رہے ہیں. نمبر 1 نمبر شمار لگانا اس لیے ضروری تھا، اگر ویسے بھی لگانا چاہیں تو ان پر لگائیں. یہ نمبر 1 نمبر 3 نمبر 5 اور نمبر 7، باقی کو چھوڑ دیں. یہ 4 کہلاتے ہیں ضروب منتجہ، اور ان 4 کے علاوہ باقی بنتے 12، ان کا نام ہے ضروب عقیمہ 5، ٹھیک ہے. وہ نتیجہ نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی ہیں بھائی؟ کیسے پتہ چلا وہ نتیجہ نہیں دیتی ہیں؟ کیونکہ جی منتجہ، اب جو 12 ہے نا جو ضروب عقیمہ ہے جو نتیجہ نہیں دیتی، وہ کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس لیے نہیں دیتی کہ شکل اول کے نتیجے دینے کی 2 شرطیں ہیں. شکل اول کا نتیجہ دینے کی یہ 4 جو ہے نا نتیجہ دے رہی ہیں، اور وہ 12 نتیجہ نہیں دے رہی. وہ 12 نتیجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ اس میں شرطیں نہیں پائیں گی. ان 12 میں شرطیں نہیں پائیں گی. اب شرطیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے 2 شرطیں. شکل اول کے اندر جب 2 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ کیا دے گی؟ شکل اول نتیجہ دے گی. اب وہ 2 شرطیں ان 12 میں نہیں پائی جائیں. اب وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایجاب الصغرا، نمبر 2 کلیت الکبریٰ. میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے، فی الحال آپ ان کو سمجھیں، ٹھیک ہے، بعد میں لکھ لینا. شکل اول کے نتیجے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایجاب الصغرا یعنی جو صغرا ہوگا نا وہ موجبہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ. شکل اول جو ہم نے 4 شکلیں پڑھی، تو شکل اول میں سے شکل اول کیا تھی کہ حد وسط صغرا میں معمول اور کبرا میں موضوع ہو. کہتے ہیں یہ شکل اول اس وقت نتیجہ دے گی جب یہ شرطیں پائی جائیں گی. سمجھ آئے گا کہ جو اس کا صغرا ہوگا نا ایجاب الصغرا موجبہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اب میں نے جن 4 پر نشان لگایا کہ جو منتجہ ہے وہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جی جو 4 نتیجہ دے رہی ہیں، اب آپ ان میں دیکھیں سارے موجبہ ہوں گے. دیکھیں اور نشان والوں مجھے موجبہ 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 ہے کہ نہیں؟ جی یہ اب آپ کہیں گے بھائی
ये भी तो मूजिबा है ना, ये दूसरे नंबर पर भी तो मूजिबा था ना। हमने कहा पहली शर्त पाई जा रही है ईजाब सुगरा, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही, इसलिए हमने उसको निकाल दिया, 5 में डाल दिया हकीमा में। दूसरी शर्त ये थी कि कुल्लियतुल कुबरा, कि जो कुबरा है ना वो कुल्ली हो, जुज़ी ना हो जी। और यहाँ पर देखें मूजिबा जुज़िया, ये कुल्लियत नहीं पाई गई। दूसरी शर्त ये है शक्ल अव्वल के नतीजे देने के लिए कि पढ़े कुल्लियतुल कुबरा, कि कुबरा क्या हो, कुल्ली हो, यानी वो जुज़ी ना हो, यानी कि मूजिबा कुल्लिया हो या सालिबा कुल्लिया हो। मूजिबा जुज़िया नहीं चलेगा, सालिबा जुज़िया नहीं चलेगा। जब शक्ल अव्वल के कुबरा में यानी दूसरे मुकदमे में इसमें अकबर है, उसमें अगर ऐसा कज़िया आ गया जो कि कुल्लिया नहीं है, जुज़िया है, वो नतीजा नहीं देगी। तो कोई फरीक मुखालिफ जब ऐसी दलील बनाए कि जो दूसरे मुकदमे में ये डाले, जो क्या डाल रहा है, जुज़ी डाल रहा है, तो उसकी दलील ठीक ही नहीं होगी। यानी आप दलील को परखेंगे, जो दलील दी जाती है ना, आज तो मुनाज़े में लड़ाई और शोर शराबा करके और इधर उधर जिसकी आवाज़ आ रही वो जीत गया, जो थोड़ा सा सोचने लगे वो आ गया, ये मुनाज़ा होता है। असल में लिखा हुआ, ठीक है, जो लिखा हुआ है ना, आप उसकी दलील को पहले परखें, ये कौन सी शक्ल बन रही है, क्या शक्ल अव्वल बन रही है, यानी ये जो नतीजे हद औसत को गिराएंगे ना, हद औसत अगर सुगरा में मामूल बन रही है, कुबरा में मौजू बन रही है, उसके बाद ये 2 शर्तें देखें, उसके बाद भी ये 2 शर्तें देखें कि जो सुगरा है वो मूजिबा हो और जो कुबरा है वो कुल्ली हो। इन 2 को याद, इनको पढ़े ईजाब सुगरा और कुल्लियतुल कुबरा, तो फिर उसका नतीजा आएगा। अब आप मुझे इनकी मिसाल दें, इनकी मिसालें जो है ना, ये हमने पहले लिखी थी, इसकी मिसाल पर हर मूजिबा कुल्लिया, इसका क्या होगा, हर इंसान जानदार है और हर जानदार इंसान है, हर जानदार नहीं, हर जानदार जिस्म वाला है, तो नतीजा क्या निकलेगा, हर इंसान जिस्म वाला है, हर इंसान जिस्म वाला है, और ये ठीक हो गया जी। अब दोनों शर्तें पाएंगी, हर इंसान जानदार है, मूजिबा कुलिया है जी, है ना, मूजिबा है, और हर जानदार जिस्म है कुलियत कुबरा जी। ईजाब सुगरा, यानी सुगरा के अंदर मनफी जुमला नहीं चलेगा जी। शक्ल अव्वल के पहले मुकदमा में मनफी जुमला सालिबा नहीं चलेगा। उसकी शर्त यह है कि ईजाब सुगरा मूजिबा होना चाहिए, यानी मुस्बत होना चाहिए। बिलाल समझ आ रहे हैं? अब दूसरे का बनाए, इसका नहीं थे मूजिबा कुलिया तो वही आएगा ना, हर इंसान बड़े साथ है, और सालिबा कुलिया इसका कुबरा बनाएंगे, हद औसत सुगरा में मामूल और कुबरा में मौजू, ठीक है, कोई जानदार पत्थर नहीं, हाँ ठीक है, शाबाश, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए, कोई जानदार पत्थर नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये पहली शर्त पाएंगे ईजाब सुगरा, मूजिबा है ना सुगरा जी, दूसरी शर्त कुलियत कुबरा है जी, कोई, ठीक है, बेशक मनफी हो चल जाता है। अब ये गिरा दें, अब हर इंसान पत्थर नहीं, यानी कोई इंसान पत्थर नहीं, तो ये भी ठीक हो गया जी, सही है। अब हम इसका बना दें, आप कुछ कह रहे थे कुछ, जी बोले। 5 नंबर सुगरा मूजिबा कुलिया मूजिबा जुज़िया है ना, हाँ शाबाश, 5 जानदार इंसान हैं, ईजाब भी है और जुज़ भी आ गई, तो ये तो शर्त है सुगरा में नहीं, सुगरा में ईजाब जरूरी है और कुलिया और जुज़िया की कोई कैद नहीं है उसकी। वो दूसरे में कुबरे में कुलिया होना जरूरी है, जुज़िया नहीं चलते, यानी सुगरा में सालिबा नहीं चलता है और कुबरा में जुज़िया नहीं चलता, यानी ईजाब सुगरा का मूजिबा होना शर्त है और कुबरा का कुलिया होना शर्त, उसमें जुज़िया नहीं चलेगा। अब ये मिसाल ठीक बन गई, ये पिछले साल हमने बड़ी तफसील से लड़कों ने पढ़े थे, तो मैं चाह रहा था आपको कुछ सीधा नहीं पढ़ाऊं, इसलिए हमने वो निकाले थे, बताया था पिछले साल निकालने, 5 जानदार इंसान है और हर इंसान लिखे आगे, हर इंसान जिस्म है, बिल्कुल ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये शक्ल अव्वल है, हद औसत ये है ना, सुगरा में मामूल कुबरा में मौजूद है, शक्ल अव्वल है, ठीक है ना, दोनों शर्तें भी पाई गई ना। अब आप इसका नतीजा निकाल लें कि हर जानदार जिस्म वाले हैं, देखिए 5 जानदार जिस्म है, तो हाँ ठीक है, 5 जानदार इसका यूं निकलेगा, लेकिन हर जानदार जिस्म इसका यूं होना चाहिए,
जब बास जानदार का जिस्म नहीं है, जैसे कि जिन्नात है, जिन्नात का वो जिस्म नहीं है, वो हवा में जाएगा, ठीक है ना, वो गुजर जाते हैं, यानी जहाँ पर वो इसी तरह जो रूह है, रूह ये भी जानदार है ना। जी जी आप कहीं पर शीशे में बंद कर दें इंसान को, निकल जाएगी रूह, जिस्म नहीं है। जिस्म तो वो है ना, ऊंचाई मतलब कि तूल अर्ज हो उसका, लंबाई मोटाई ऐसे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, बाज जानदार जिस्म है, जिस्म वाले, हर इंसान जिस्म वाले हैं, बाज जानदार जिस्म वाले हैं। अच्छा, अब 7वें नंबर की तरफ आ गए। जी है कि मूजिब जुज़ है, बस इसको पूरा कर लेंगे, एक सही मूजिब जुज़ है, यही आएगा ना, तो बाज जानदार इंसान है। अब दूसरा बनाइए इसका, शाबाश। मूजिब जुज़िया था 7 नंबर में, और सालिब कुलिया, कोई इंसान पत्थर नहीं। हाँ, कोई इंसान पत्थर नहीं, बास जानदार इंसान, कोई इंसान पत्थर। हाँ यही वाला आएगा, हाँ, कोई इंसान पत्थर नहीं। अब हर जोसफ को गिरा दें और यूं लिखें, कोई जानदार पत्थर नहीं, यूं आएगा। मेरे ख्याल में बाज और जो कुल है ना, नतीजे में इसको हम बदल सकते हैं नतीजे में। इधर भी अगर हम बाज जानदार जिस्म वाले, इधर अगर हर जानदार जिस्म वाले हैं, तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर नतीजा यानी ये आ रहा है कि बाज जानदार पत्थर नहीं, हालांकि ये बात तो ठीक है, यानी बाज जानदार पत्थर नहीं मतलब बाज जानदार पत्थर हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे कि कोई जानदार पत्थर। हाँ, कोई जानदार। तमाम आ जाएगा, तमाम जानदार। ये कोई और तमाम जो है ना, ये कुलिया के लिए आते हैं, ठीक है। ये कोई और तमाम ये किसके लिए आते हैं, ये कुलिया के लिए आते हैं। हर जानदार इंसान ये मूजिब कुलिया के लिए आता है, और कोई जो है ना जानदार पत्थर नहीं, ये किसके लिए आता है, सालिब। बस चले, 3 मिनट ऊपर हो गए।